اندھیرا چھانٹ کر اجالا نکال دیتا ہے. آہا بول دو سبحان اللہ. اندھیرا چھانٹ کر اجالا نکال دیتا ہے. اذان جب بھی نبی کا بلال دیتا ہے. نبی کے ذکر سے اولاد نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو راحت. حسین ابن علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید ملت، فیضان مسیح ملت حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر فداء القادری نعیمی واہ واہ زندہ باد. حضرات بہت اچھا نعرہ لگایا ہے نقیب اعظم ہندوستان ناصری مسلک کے اعلیٰ حضرت نقیب الملک حضرت علامہ قاری سرفراز احمد نازا صاحب قبلہ نے بہت اچھا نعرہ لگایا ہے. لیکن نعرے کا جواب آپ نے ایسے ہی دیا ہے. ایسا ہی نعرہ ہونا چاہیے, اس کا جواب ایسا ہی ہونا چاہیے. ایسا نعرہ مت لگائیے, ہاں ایسا نعرہ مت لگائیے جسے سن کر کل کوئی بدعقیدہ یہ کہہ کر کے گزر جائے کل کے گوبند پور کے جشن عید میلاد النبی عظمت والدین کانفرنس میں سنیوں کے نعرے میں کم نہیں تھا جبکہ مجمع بھی کم نہیں تھا. ایسا نعرہ لگنا چاہیے اور ایسا جواب ملنا چاہیے کہ امریکی کتوں کو اسلام سمجھ میں آ جائے اور نجد کے دلالوں کو امام الانبیاء کی عظمت کا پتہ چل جائے اور بھارت کے بھٹکل ایمان اور خصوصیت کے ساتھ پوری دنیا کے بدعقیدوں کو معلوم ہو جائے کہ صوفی شہید ملت کے غلام زندہ ہے کیونکہ ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے, ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید ملت، فیضان مسیح ملت حضور احمد العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر فداء القادری نعیمی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سرفراز بھائی آج کے ڈیٹ میں کسی مولوی مولانا کو دینے کے لیے 10 روپے کا نوٹ بعد میں نکلتا ہے, کلیجہ پہلے نکل جاتا ہے. لیکن یہ بھائی صاحب شاید عبد المنان بھائی ہیں, عبد الخالق صاحب ہیں اور سونو مونو کے پاپا ہیں, جو بھی ہیں, لیکن انہوں نے 100 روپیہ دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ 100,000 نیکی عطا فرمائے, مولا تعالیٰ 1000 بلاؤں سے محفوظ معمون رکھے. میں کہنا چاہوں گا آج کے ڈیٹ میں کسی مولوی مولانا کو دینے کے لیے, امام صاحب کو دینے کے لیے, خطیب صاحب کو دینے کے لیے بعد میں نکلتا ہے, کلیجہ پہلے نکل جاتا ہے. لیکن یہ بھائی صاحب کا دل گردہ کلیجہ تھا, انہوں نے 100 روپے لا کر کے دے دیا ہے. مولا تعالیٰ ان کے دل گردے کی حفاظت فرمائے. دعا دیتا ہوں پروردگار, ہاتھوں کو اٹھائیے, دعا کر دیتا ہوں 2022 میں جو دعا کر دیتا ہوں قبول ہو جاتی ہے. پتہ نہیں حضور سید احمد ربانی صاحب قبلہ کی موجودگی میں کون سی دعا رب کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے کہنا مشکل ہے. اس لیے ایک ہاتھ نبی کے نام پہ, دوسرا ہاتھ علی کے نام پہ اٹھا کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیجیے. دعا کرنے جا رہا ہوں, یا اللہ ابھی بھی چانس ہے, موقع ہے, اٹھا دیجیے میرے ہاتھوں کو. یا اللہ جتنے ہاتھوں کو جتنے ہاتھ اٹھتے ہیں اسی سال 2022 میں یا 2023 تک یہ ہاتھ روز رسول کی جالی کو چوم لے. یہ ہاتھ کسی کو گرانے کے لیے نہیں, کسی کو پٹکنے کے لیے نہیں, کسی کی گردن دبانے کے لیے نہیں. اور چاند ملٹی میڈیا اگر آپ آ گئے ہیں تو ذرا چاند ملٹی میڈیا سے کہوں گا آپ ذرا کوریج کیجیے اور دنیا والوں کو دکھا دیجیے اور بتا دیجیے کہ حضور صوفی شہید ملت, حضور مسیح ملت کے دیواؤں نے رات کے سناٹے میں رات کے 1 بجے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے. اس لیے چاروں طرف گھما کر کے آپ کوریج کر کے دنیا والوں کو بتا دیجیے کہ رات کا سناٹا ہو یا دن کا اجالا ہو, ہر وقت نبی کا دیوانہ نبی کے لیے بنا دے, حضور سید احمد ربانی کا چہرہ چومنے کے لیے بنا دے اور ان کا قدم بوسی کرنے کے لیے بنا دے. سبحان اللہ. حضرات آئیے میں شروع ہونا چاہتا ہوں, سیدھے میں اپنی اوقات پہ آتا ہوں. حضور مسیح ملت کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں. حضور احمد ربانی صاحب قبلہ کی موجودگی میں ایک شعر پڑھتا ہوں, اگر عشق میں انگڑائی لگ جائے تو پھر گولی مار دینا, لیکن مجھے نہیں, نازا صاحب کو, اس لیے کہ انہوں نے بلایا ہے. اس لیے حضرات ایک شعر پڑھتا ہوں, جہاں تک میری آواز جائے گی وہاں کی شرکتیں چاہتا ہوں کہ چھوڑ چھاڑ کے سب کام دھام جبل پور چلے جائیے. چوتھے مصرے میں بول رہا ہے, 3 مصرے تک آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیجئے. چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیے, جس کو بھی مرشد کامل کی تلاش ہو گئی, آنکھ بند کر کے جبل پور چلے جائیے. نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان شہید ملت، فیضان مسیح ملت حضور احمد العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر فداء القادری نعیمی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. حضرات بہت اچھا نعرہ لگایا ہے, لیکن تھوڑا
सा मैं आपको इकट्ठ करता हूँ और थोड़ा सा आपको तैयार कर देना चाहता हूँ हजरात। इसलिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ और ऐसा बुलंद शेर कि यहाँ से लेकर के जबलपुर तक का आप सफर करेंगे तो इंशाअल्लाह हर मिनट, हर लम्हा, हर पल आपको जबलपुर की याद आएगी, मसीह मिल्लत की बारगाह याद आएगी, उनका दयार याद आएगा, उनकी चौखट याद आएगी, उनका आस्ताना याद आएगा और उनकी करामतें आपके ज़हनों के, फिक्रों के हाशिए पर उभर कर नजर आएगी। इसलिए हजरात जबलपुर जाइए, कहीं जाइए ना जाइए, वाया जबलपुर, अजमेर, बगदाद, वाया मदीना शरीफ जाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर सुनना चाहते हैं सुना दो, एक अच्छा शेर सुना दो, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए, कितने लोग तैयार नहीं है? हाँ, इस वक्त तकरीर करना 1 बजे इतना आसान काम नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इस वक्त तकरीर करना और रांची पैदल जाना बराबर है, लेकिन मैं गोविंदपुर की धरती पर हूँ। आज मुझे एहसास कराइए कि इस वक्त तकरीर करना आसान काम है और रांची पैदल जाना मुश्किल काम है। सुनेंगे ना? तो इसलिए जिस सरजमीन पे कोई कलंदर चमक गया, बोल दो दीवानो, कहाँ खो गए हो? जिस सरजमीन पे कोई कलंदर चमक गया, उस सरजमीन का दोस्तों घर घर चमक गया। और जबलपुर में जब से आए मसीह मिल्लत हमारे, जबलपुर की जमीन का मुकद्दर चमक गया। जबलपुर की जमीन का जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, फैजान शहीद मिल्लत, फैजान मसीह मिल्लत, हुजूर महबूबुल उलमा, नारे तकबीर। जिसे मेरे आका की सना खानी नहीं आती, उसके घर दावत मेहमानी नहीं आती, जिनके घर रखा हो मेरे शहीद मिल्लत का शजरा, उनके घर कभी कोई परेशानी नहीं आती, उनके घर कभी कोई परेशानी नहीं आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, फैजान शहीद मिल्लत, फैजान मसीह मिल्लत, औलाद अली, शहजादा इमाम हुसैन, हुजूर अहमदुल उलमा, खानवादा रब्बानिया, नारे तकबीर। हजरात में इसी दरबार की रोटी खाता है, इसी दरबार का दाना खाता है, इसी दरबार का पानी पीता है, इसलिए इनका गुणगान करना बेहद जरूरी है। हर दुनिया का हर आदमी है, दुनिया की हर कौम है जो अपने कौम के बाबर रहमत की तारीफ और तौसीफ करती है। हजरात बताना चाहता हूँ, दुनिया का हर आदमी अपने पेशवा की तारीफ और तौसीफ करता है, लेकिन हजरात ये दुनिया का दस्तूर है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जब भी नाम लिया जाए उसका चाहने वाला बेचैन बेकरार नजर आता है। लैला का जिक्र होता है, मजनू तड़पता है, पीर का जिक्र होता है, मुरीद मचलता है, अमीर खुसरू का जिक्र होता है, महबूब इलाही का जिक्र होता है, अमीर खुसरू बेचैन और बेकरार नजर आता है। हुजूर शहीद मिल्लत, हुजूर सूफी मिल्लत, हुजूर मसीह मिल्लत का जिक्र होता है, उनका दीवाना मचलने लगता है। एक भारत का हुजूर मुसलमान, एक गोविंदपुर का दयालु जाले मुसलमान, तुम भी तो किसी से प्रेम करके बैठे हो, दिल लगा करके बैठे हो, तो आपका जवाब होगा फदाउल कातिलीन, हम किसी दुनियादार के चाहने वाले नहीं, रसूल बावकार के चाहने वाले हैं, जबलपुर के ताजदार के चाहने वाले हैं। इसलिए हजरात आपको भी तड़पना चाहिए, आपको भी मचलना चाहिए, आपको भी आहवात की सदाएं बुलंद करनी चाहिए। इसलिए हजरात एक शेर पढ़ता हूँ, तरन्नुम ऐसी नहीं कि मैं ताबिश बुखारी को सुना सकूं और अरशद बनारसी के सामने कुछ पढ़ सकूं, लेकिन एक शेर पढ़ता हूँ, अगर इश्क के आंगन में आग लग जाए तो आग लगाने से पहले बुझाने की तैयारी करना। और हजरात अभी मेराज रब्बानी साहब, सिकंदर भाई और उनके तमाम भाइयों ने, मैं चाहता हूं कि उनके तमाम भाई जो 6 भाई हैं वो तमाम भाई यहाँ सामने आ जाए। रिजवानुल हुदा भाई, अब्दुल मन्नान भाई, अब्दुल खालिक साहब, कहाँ हैं ये लोग? हैं कहीं? सोनू भाई, मोनू भाई कहीं हैं? अगर हैं तो आ जाइए, सामने आ जाइए। मैं आप लोगों का इसलिए कि मैंने इस गोविंदपुर की बड़ी तारीफ सुनी है। नाजा भाई आप वहीं पर बैठ जाइए, बस आपको देखना चाहता हूँ और ऐसे दीवानों को देखना चाहता हूँ जिनकी नजरें हुजूर सैयदना सरकार अहमद रब्बानी की निगाहों में टकरी हुई है, मिली हुई है। हजरात इसलिए शेर पढ़िए और शेर पढ़ने से पहले शेर की गहराई तक जाने की कोशिश कीजिए, लेकिन इतनी गहराई तक मत जाइएगा कि वहां से उठने का आपको निशान भी न मिल सके। इसलिए हजरात बिल्कुल तवज्जो के साथ, होशियारी और सावधानी के साथ सुनिएगा कि कितना 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 प्यारा प्यारा प्यारा
मिराज रब्बानी साहब ने कहा है कि इस मजमे में जो खड़े होकर के नारा लगाएगा उसको 500 रुपए दिया जाएगा। कोई है जो खड़ा होकर के नारा लगाए? लेकिन अगला ऐलान ये भी है कि अब की बार नहीं, अगले साल दिया जाएगा। तो है कोई जो खड़ा होकर के फ्री में नारा लगा सकता है? कोई दीवाना, कोई मस्ताना, अरे कोई आशिक? इतना बड़ा मजमा है, कोई एक दीवाना खड़ा हो जाए, भाई साहब आप ही खड़े हो जाइए, सब लोगों की लाज बचा लीजिए। हाँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह, हाथ उठा के, हाथ उठा के, या रसूल अल्लाह। बैठ जाइए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर पहलवान गाना चाहिए। अल्लाह रे प्यारे मदीना की बरकते, दीवाना बात करता है होशियार की तरह, दीवाना बात करता है होशियार की तरह। इसलिए हजरात, जहां जहां तक मेरा इश्क पहुंचेगा, मेरी मोहब्बत पहुंचेगी, वहां से आप रिटर्न हमारी मोहब्बत हमको दे दीजिएगा। हुजूर और मसीह मिल्लत के शहजादे और हुजूर मसीह मिल्लत के सच्चे अमीन, उनके सच्चे वारिस और जानशीन जलवागर जलवा अफरोज है। इनके कदम को अपने चेहरे का गाजा बनाकर, इनके कदम के धूल को अपने चेहरे का और अपने आंखों का सुरमा बना करके आप तक पहुंचता हो। इस्तकबाल कीजिए। मैं चाहता हूं कि ऐसा इंकलाबी आखिरी शेर है कि दुनिया कितना प्यारा प्यारा प्यारा, कितना प्यारा रोज़ा है मेरे मसीह मिल्लत का, कितना 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 प्यारा प्यारा प्यारा, कितना प्यारा रोज़ा है, कितना प्यारा रोज़ा है मेरे मसीह मिल्लत का। अरे सारा सारा आलम शैता है, सारा आलम शैता है मेरे मसीह मिल्लत का, सारा आलम शैता नारे सालत, फैजान शहीद मिल्लत, फैजान मसीह मिल्लत, खान वादे रब्बानिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। सरफराज भाई ने कोई गलत थोड़ी कहा था। यहाँ के लोग दिलदार भी हैं और दौलतमंद भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा था कि यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि आप गोविंदपुर में नहीं जबलपुर में पड़ रहे हैं। पता नहीं इन दोनों का कनेक्शन ऐसा है कि दोनों जगह पुर लगा हुआ है। गोविंदपुर हो या जबलपुर हो, जलसा इतना कामयाब है कसम खुदा की। मिराज रब्बानी साहब का फिक्र भी, मेरा जलसा कैसे कामयाब होगा, कैसे मकबूल होगा, लेकिन कसम खुदा की आज का जलसा ये कबूल और मंजूर मकबूल हो चुका है। ये वक्त सचमुच मेरे दोस्तों खुशी का है, ये वक्त सचमुच मेरे दोस्तों खुशी का है। पेशे नजर जमाल एक आले नबी का हो, आमद से आमद से आमद से हो रही है तजल्ली की बारिश है। चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। खुशबू बता रही है कि गुलशन के फूल है, खुशबू बता रही है कि गुलशन के फूल है। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। तुमको अपने आप को हिटलर समझना मुबारक हो, हम तो बस इन बुजुर्गों के कदमों के फूल है, हम तो बस इन बुजुर्गों के कदमों के फूल है। जज़ाकल्लाह हजरात, इसलिए शेर सुनिए और हजरात वहां तक पहुंचे जहां तक आपको पीर साहब पहुंचाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह जबलपुर होते हुए जन्नत के दरवाजे में पहुंचेंगे। अगर ये शेर आज समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, नहीं समझ में आए तो और जोर से सुभान अल्लाह बोलिएगा, ताकि हमको समझ में आ जाए कि आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये गोविंदपुर का दीवाना इतना ना समझ थोड़ी है कि समझेगा नहीं। ये तो वहां तक पहुंचेगा जहां तक पीर की रसाई होगी। पीर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह दीवाना जन्नत के दरवाजे पर मचल कर कहेगा, खुद में घर अपना तैयार करने को दीजिए, आप भी जरा मचल के सुभान अल्लाह को बोल दीजिए। खुद में
सारा आलम सारा फिर से बनाइए वरना मुझे आज इस महीने में प्रोग्राम रखना है, जिसका महीना होगा तो उस प्रोग्राम को नहीं करना है। सारा 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 आपका टोला मोहल्ला थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, जरा इस पार्टी से इस टोला मोहल्ला से आवाज आ रही है सुभान अल्लाह। अच्छा इसका उठाओ घोषणा घोषित कर दो, प्रखंड घोषित कर देता हूँ, इस प्रखंड से आवाज आ जाए बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हम वो मसीह हैं शेर पढ़ने की एकदम इजाजत नहीं है। उसके बाद सीधे मंत्र में आऊंगा। हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की और बड़े बड़े विद्वानों की आचार्यों की बड़े बड़े पंडितों की बात आपके सामने रखूंगा कि किसने इस्लाम के ताल्लुक से क्या कहा है, पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से कितनी बड़ी बातें हुई है। बड़े बड़े लिखे लोगों ने, दानिश्वरों में, इंटेलेक्चुअल लोगों ने और अमेरिका, अफ्रीका, एशिया तमाम का पूरी दुनिया के लोगों ने मुस्तफा जाने रहमत की बात में खिराज अकीदत कैसे पेश किया है, वो तमाम गुलहाए मोहब्बत आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसलिए आखिरी शेर है, इश्क का इजहार कीजिए, दिल लगा के मोहब्बतों के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह कि हम अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसका कोटि कोटि बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कहिएगा फिदाउल कादिर नहीं में एक शब्द एक लफ्ज नहीं समझ में आया और जबरदस्ती सुभान अल्लाह बुलवा रहे हो। मैं कहूंगा आपको समझ में आए ना आए, ये मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की नात है। और आप कहोगे ये क्या है, तो मैं
कहूंगा कि वो जो यही है जो बरेली के ताजदार ने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के आज से लगभग 100 साल पहले पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था जनजाति नजीरों का भी नजर है मिसले तू अशुभ पैदा जाना जब राज को ताज तेरे सबसे है तुझको शहर दूसरा जाना बस खामे खामे नवाए रजा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद हमका नातिक था ना चार इस राह पड़ा जाना न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है जितने दुनिया लोग भी बोले सुभान अल्लाह कोई सुनेगा तो क्या कहेगा इतनी कम आवाज न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है जितने मोटे लोग बोले सुभान अल्लाह जरा दिल लगाई ना भाई थोड़ी सी बेदारी का सबूत दीजिए और मेरा साथ दीजिए कम से कम तनहा मैं बोल रहा हूँ आप इतने सारे लोग बोल रहे कम से कम मेरी आवाज आप तक पहुंचे आपकी आवाज मुझ तक पहुंचे न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है अब जरा गिल मिल करके महागठबंधन बनाइए मदीने वाले की सरकार बनाइए लोग हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है दीन अल्लाह का किरदार पैगंबर से चला है और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है वल्लाह मेरे जज्बे तकद्दुस का असर है बैठा हूँ कबूतर में और गुंबदे खज़रा पे नजर है ताबे मोहब्बत कुछ भी नहीं अहले वफा के सामने सारे मुफ्ती हीस थे मेरे अख्तर रज़ा के सामने वक्त का कोई बादशाह हो या हो जमाने का कोई अमीर अरे सबकी गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा पिया के सामने इसलिए हजरात हिंदुस्तान शाश्वत धर्म का एक आदमी उठता है उसके बाद वो अपनी किताब को उठाता है उस किताब को अध्ययन करता है अध्ययन करने के बाद वो कहता है श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7 8 और लिखने वाला लिखता है गजानन भूतगणा विश्वतम कवचम हो फलचार वच्चम्मा महाशुद्ध विनाशकारी कन्नमामि हो पंडितम भग्नेश्वरम स्वाहा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु गजा मंगलम स्वाहा मंगलम कुंभी गजा मंगलम स्वाहा मंगलम तना हरि 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 बोल दो सुभान अल्लाह गिरीशं चन्नं शीशनं पर्वतं चन्नं शीशनं शशांकं चन्नं शीशनं बलगं सदानं तेज बहादं गंगाजल स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा कृष्ण अवतार न्यारे पुलितं पुखरी मध्यं सर्व शिक्षार्थं बलवं सदानं तेज बहादं लब लहलं पथवं तपस्यं वीरं महावीर क्रो प्राणं प्राकृतं सोमति विष्णुवसं स्वरूपं यदा यदा हि धर्म से यदा निर्भोति भारत अभिप्रधानं धर्म से यदा श्रीमान मुसलमान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संहार नाशाय संभवामि इसके बाद उठता है एक देवघर का पंडित उसके बाद इसी झारखंड का एक पंडित उठता है देवघर की जमीन है देवघर में जहाँ सारे लोग गंगा जल में स्नान करने के लिए बैसाख के महीने में तो नहीं लेकिन सावन के महीने में जरूर आते हैं और वहाँ आने के बाद एक पंडित से मुलाकात करने के बाद वो पंडित कहते हैं ए जनाब आप क्या कर रहे हैं उन्होंने कहा फिदाउल कादिर नहीं में पूरी दुनिया के लोग नबी की तारीफों का जिक्र कर रहे हैं और आप नबी का जिक्र कर रहे हैं इसलिए जरा मुझे भी कुछ कहने दीजिए मैंने कहा पंडित साहब आप अपने धर्म गुरु की बात क्यों नहीं करते आप अपने मजहब मिल्लत की बात क्यों नहीं करते आप अपने मकतब फिक्र की बात क्यों नहीं करते आप अपने गुरु की और धर्म गुरु की बात क्यों नहीं करते अपने ग्रंथों की बात क्यों नहीं करते उसने कहा जब से मोहम्मद की जिंदगी पढ़ी है जब से मोहम्मद की जीवनी पढ़ी है मेरा दिल मोहम्मद की तरफ माइल हो गया है मेरा दिल मोहम्मद की तरफ कुर्बान हो गया है उसके बाद देवघर का पंडित उठता है और कहता है संपूर्ण करम से संपूर्ण करम से मोहम्मद के रात है संसार में सोच मोहम्मद की जात है मोहम्मद के जात है और हज़रात हिंदुस्तान शाश्वत धर्म की एक बहुत बड़ी किताब और बहुत अजमत वाली किताब उनके धर्म के अनुसार है लेकिन बहुत पवित्र किताब भारत देश के लक्ष्य थे सफा नंबर 370 श्लोक नंबर 11 12 13 14 पर अंतिम महर्षि के पदार्थों की भविष्यवाणी यानी बयान रसूल का जिक्र इस तौर पर मिलता है और लिखने वाला लिखता है हरिओम ओम अवतार पुनीतम पृथ्वी मध्यम अरण्य सद्वार्कम सर्वगणम सवानं तेज सर्वं महापुरुषं पुरुषोत्तम शंभुलो स्थानं ये शिरस सोमत्यागरमादकं पृथ्वी पावनं तर्कगर्हत गोस्यतं परम्परागत परमात्मे
माना समझिएगा, भवार सुनिएगा, ट्रांसलेशन मुलाहजा कर लीजिए। ईमान ताजा हो जाएगा, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। जरा सुनना चाहते हैं तो आगे से पीछे, दाएं से बाएं सारे लोग मिलकर के बोल दो सुभान अल्लाह। ओम का मतलब ईश्वर, ओम का मतलब रब्बुल जलाल, खालिक के कायनात, मालिक के कायनात, ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ है अवतार। बीचों बीच जमीन पे आएगा, जो बड़ा बलवान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा शक्तिमान होगा। शक्ति का ये आलम होगा, उंगली का इशारा करेगा, चांद को टुकड़ों में तकसीम कर देगा। उंगली का इशारा करेगा, चांद को हिस्सों में बांट देगा। उंगली का इशारा करेगा, डूबे सूरज को वापस बुला लेगा। उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी कर देगा। हज़रत अब ज़हन को करीब कीजिए, वो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह है जो पत्थर पर लाठी मार करके पानी निकाला करते थे। वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह है जो पाँव की रगड़ से जमीन की पेट से पानी निकाला करते थे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी कर रहे हैं। और पहले के ताजदार पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे चूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। हज़रत वो मेरे नबी की उंगली है, उंगली का जवाब नहीं है। इसी की तर्जमानी करते हुए देवघर का पंडित उठता है, उसके बाद कहता है हज़रत माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर कर रहा है, मैं चाहता हूं माइक ऑपरेटर साहब आप ऐसा बजा दिए, इतना अच्छा बजा दीजिए कि मैं सुबह होने तक आपको कम से कम 50 रुपया देके जाऊं। सुबह होने तक आपको 50 रुपया देके जाऊं, लेकिन सुबह रहूंगा तब ना। अगर अभी लेना चाहते हैं तो बढ़िया बजा दीजिए। हाँ, जरा मोहब्बत के साथ दिल लगा करके एक को थोड़ा सा कम कीजिए, बेस एकदम कम कर दिए, टोन दीजिए, मेन मशीन से साउंड बढ़ाइए। हाँ, जरा मोहब्बतों के साथ अब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हज़रात, इसलिए कहना चाहूंगा, देवघर का पंडित उठता है, वो भी मेरे आका की इस अजमत को बयान करने के लिए तैयार होता है। मेरे आका की इस अजमत और अजमत शान रिसालत को बयान करता है, इस मौजज़े को बयान करके वो कहता है, संपूर्ण करम से मोहम्मद के ज़ब हो संसार में सोच मोहम्मद के ज़ब है, मोहम्मद के बात है। और उंगली से जिसने चंद्रमा को भाग में किए शक्ति में बेमासिल मोहम्मद की जात है, मोहम्मद की बात है। हज़रात, इसलिए आइए मैं आपको मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र सुनाना चाहूंगा। कहां कहां जिक्र सुनना चाहोगे, कहां कहां नबी का जलवा देखना चाहोगे, किस किस जगह मेरे आका की तारीफ व तौसीफ सुनना चाहोगे। दुनिया के हर धर्म की पुस्तकों को, हर धर्म की ग्रंथों को, हर धर्म की किताबों को उठाइए तो वहां वहां मेरे आका का जिक्र है, वहां मेरे नबी का जिक्र जमील है। इसलिए हज़रात, कभी कभी इन उलमाए किराम और खुसूसियत के साथ सैयद अहमद रब्बानी साहब क़िबला की मौजूदगी में एक बात कहना चाहता हूं। कभी कभी मैंने देखा था फेसबुक के जरिए अल्लामा कारी सरफराज राजा के इनकी आईडी से कभी देखता था, हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करता था। कभी दिल में तमन्ना होती थी, कभी काश एक बार मुलाकात हो जाए हुजूर सैयदना सरकार सैयद अहमद रब्बानी से। तो कभी फेसबुक ही में तमन्ना मचल कर रह जाती थी कि कब दीदार का वक्त होगा, कब देखूंगा, कब इनके चेहरे अक़दस की ज़ियारत करूंगा, कब इनका मुक़द्दस पाँव दबाऊंगा, कब इनके चेहरे को और इनके हाथों को बोसा देने का शर्फ हासिल होगा। लेकिन हज़रात, आज की वो घड़ी है जिस वक्त में हज़रत के चेहरे की ज़ियारत भी कर पा रहा हो और हज़रत की मौजूदगी में कुछ बोलने का शर्फ हासिल हो रहा है। इसलिए मैं कहना ये चाहूंगा कि हज़रात, इन अल्लाह वाले को और अल्लाह के नेक बंदों को, हुजूर मसीह मिल्लत को अपने इश्क में जमाए रखे और अपनी अकीदत का मज़ार बनाए रखिए। हज़रात, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, महबूब बंदे हैं। इसलिए हज़रात, नबी का जिक्र कहां कहां देखना चाहते हो। सरफराज भाई, नाज़ा साहब, अब मैं जुमलों से थोड़ा सा इस्तेमाल करने के लिए जा रहा हूं। अगर जुमलों का लुत्फ आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेरे साथ सफर करने के लिए तैयार हो जाइए। नबी का जिक्र कहां कहां है, जरा देखिए। नबी का जिक्र दरिया की रवानी में, मौजूद की तूफानी में, समंदर की सैलानी में, बादल के शोर में, हवाओं के जोर में, कलियों के चटक में, फूलों के महक में, सब्ज की लहक में, आग की दमक में, हीरे की चमक में, नींबू की खटास में, कंद की मिठास में, याकूब की जुदाई में, यूसुफ की जुदाई में, याकूब की दुहाई में, मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, पहाड़ों की ऊंचाई में, गार की गहराई में, खिरत की खबर में, इश्क की नजर में, ला इलाहा इल्लल्लाह की हस्ती में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्त नजर उठाइए।
अर्ज के मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, हर जहां जानिब मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत का चर्चा है। और बरेली के ताजदार, यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान, बरेली का अहमद रजा खान, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के ये दुनिया वालों को बता रहे हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा घूम घाम, अरे कान जुनर लगाइए, बस तेरी ही दास्तान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने शहीदे मिल्लत, फैज़ाने मसीहे मिल्लत, फैज़ाने आला हज़रत, कलामे आला हज़रत अल्लामा डॉक्टर फिदाउल कादरी दईमी। हजरात, जबलपुर ये एमपी की राजधानी हो सकती है, लेकिन कसम खुदा कि हम इश्क वाले ये कह सकते हैं, हमारी मोहब्बतों की राजधानी जबलपुर है। इसलिए के खानकाह रब्बानिया जबलपुर शरीफ में वाक़ है। इसलिए हजरात हमें जबलपुर से इश्क है, मोहब्बत है। इन अल्लाह के नेक बुजुर्गों के कदम की बरकतें हमारे घरों में आ रही है। हजरात, इसलिए कहना ये चाहूंगा, इन अल्लाह के नेक बंदों से आप अपने आप को राबितो मरबूत रखिए और रिश्ता कायम और मजबूत रखिए। हजरात, आइए मैं आपको नबी का जिक्र दिखाना चाहता हूँ। डॉक्टर माइकल हार्ट हैं, एक बहुत बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल और दानिशमंद इंसान हैं। बहुत पढ़ने के बाद उन्होंने एक किताब तहरीर की, बहुत सारी किताबों को खंगालने के बाद एक किताब लिखा। किताब का नाम द बुक 100 लिखा। जनाब सरफराज भाई थोड़ा सा देखिए, पान तो कभी भी खा लीजिएगा, मुझसे कभी कभी मुलाकात होगी, इसलिए कि हम लगभग 36 घंटे का सफर करके आप तक पहुंचे हैं। जरा थोड़ा सा देख लीजिए। हजरात, अगर इश्क के आंगन में आपके बच्चे खेल रहे हैं, आपका वजूद खेल रहा है, तो जरा मेरे साथ सफर करने के लिए तैयार हो जाइए। आइए मैं आपको आपका इश्क लेकर के मदीना शरीफ पहुंचने से पहले जबलपुर शरीफ पहुंचाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, डॉक्टर माइकल हार्ट हैं, उन्होंने एक किताब तहरीर की द बुक 100। उस किताब में लिखा, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं, वो कहते हैं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने तारीख इंसानी में सबसे ज्यादा आला तरीन कामयाबी हासिल की, मजहबी सतह पर भी और दुनियावी सतह पर भी वो इंतहाई मौसर लीडर बन गए। आज उनकी तालीमात, उनकी शिक्षा, उनकी गाइडलाइन से पूरी दुनिया खैरात पा रही है। आज पूरी दुनिया में जो विद्या, शिक्षा, एजुकेशन, तालीम और तरबियत का इजाफा होता चला जा रहा है, ये मुस्तफा जाने रहमत के दम कदम से है, उनकी रहीने मिन्नत है। इसलिए हजरात, कहना ही चाहूंगा, मुस्तफा जाने रहमत की अजमत को समझने के लिए आइए करीब होते हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की किताब और उनकी उम्मत की किताब इंजील बरनबास है। इंजील बरनबास में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अभी मेरे आका का दरूद मसरूद नहीं हुआ है, मेरे आका इस खाकदाने गिट्टी पर जलवा फरोज जलवा फिगर नहीं हुए हैं। और 571 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों को, अपने उम्मतों को, अपने चाहने मानने वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, Thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh and hath nothing will me. If you love me, keep my commandment, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever। यानी ए लोगो, अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इस दुनिया का आखिरी शहजादा आने वाला है और मुझ में उसके जैसा कमाल कभी नहीं है, क्योंकि मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ, नाबीना को बीना कर देता हूँ, कोर्ट का मर्ज दूर कर देता हूँ, लेकिन कसम खुदा की ये काम उनके गुलाम कर लिया करेंगे। कभी अली करेंगे, कभी गौसे आजम करेंगे, कभी औलादे गौसे आजम करेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर। हजरात, थोड़ा सा सीमेंट करके आ जाइए और करीब होकर के गुफ्तगू सुनिए, इंशाअल्लाह मैं आपके जहन में उतर जाऊंगा। अगर आपके जहन में नहीं उतर पाऊंगा, मैं अपने आप को उतार दूंगा। हजरात, आइए थोड़ा सा और जहन को करीब कीजिए। हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताब, बहुत बड़ी किताब अथर्ववेद है। अथर्ववेद का पहला, दूसरा, तीसरा मंत्र है, उसमें मेरे आका का जिक्र जमील इस तौर पर है, इदं जना उपश्रुत नराशं सह अस्त विश्यते सस्तुम सहस्ना नौतिम चकोरम आरिश्मेषु दद्मः उष्ट्राजस परवाहन बधूमंत निर्दशः वशमारतस्सैनि जीवितपीव ईश्मान उपस्परशः ईशा ईशाय मामहे शतम निष्कांद
संजा त्रिनिशतान वार्ताम सहस्ना दश गुणाम अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 121 मंत्र नंबर 1 2 3 में लिखते हैं। इससे पहले देवघर का एक पंडित उठता है, उठ के कहता है सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़, जिसने किया है जग की रचना उसे ना ताजो इसलिए हजरात अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, मैं 3 पॉइंट आपके सामने उजागर करके जाऊंगा। एक सादत किराम की इज्जत और अजमत बताऊंगा और वालिदैन की इज्जत और अजमत बताऊंगा और मेरे आका की अजमत शान रिसालत बयान करके जाऊंगा। ये 3 पॉइंट मैं आपको समझाने में और बताने में कामयाब हो गया तो मैं समझूंगा कि मैं मुकद्दर का धनी हूं और मेरी मेराज और मेरे किस्मत की मेराज हो रही है कि मैं आपको किसी कदर समझाने में कामयाब हुआ। हजरात आइए मैं आपको और मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र से करीब करना चाहता हूँ। ये वो जिक्र है मुस्तफा जाने रहमत का चर्चा, मोहम्मद अरबी का चर्चा। जो मोहम्मद वो बड़े धनवान आदमी है कि हजरात काशी वो जमीन है जहाँ हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के बहुत सारे लोग बड़े बड़े आचार्य और बड़े बड़े पंडित रहा करते हैं। उनमें से एक पंडित सुनील नारायण है, वो उठते हैं काशी की धरती से, उसके बाद कहते हैं मोहम्मद सबसे बड़े धनवान, बोलो 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 ललहक बोलो सुभान अल्लाह, मोहम्मद सबसे बड़े धनवान, जगत में सबसे बड़े महान, जगत में सबसे बड़े महान, उनसे बढ़कर नहीं किसी की ऐसी निराली शान, जगत में सबसे बड़े धनवान, मोहम्मद सबसे बड़े महान। इसलिए हजरात आप हम और आप इंसान हैं, इंसानियत का लिबादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उठाया है, इसलिए इस इंसानियत को बचा के रखिएगा, मानवता को बचा के रखिएगा, भेदभाव को नफरत के पास मत जाइएगा। इसलिए कि जो किसी को मारने की तरगीब दो वो इस्लाम नहीं सिखाता है, जो किसी को हजरात जो नफरत की बात करता है वो कोई धर्म नहीं सिखाता है, वो तो वर्गलाने के हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम हैदर नवाजी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर नसीरे मिल्लत, हुजूर शहीदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात इसलिए आइए थोड़ा सा करीब हो जाइए। हजरत गुलाम हैदर नवाजी साहब और हजरत मेराज रब्बानी साहब किबला और दीगर उलमाए अहले सुन्नत, बहुत सारे इलाके के अहबाब और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जलवागर जलवा अफरोज हैं, मसलक की आला हज़रत के सिपाही बैठे हैं, पासबान मसलक की आला हज़रत बैठे हैं। ये जहाँ पर ये लोग बैठ जाए वही दीन की दरसगाह है, इसलिए इन तमाम लोगों की दरसगाह में बैठ करके फिदाउल कादिर नईमी आप तक एक जुमला पहुंचाना चाहता है कि ये सारत किराम है, ये हुजूर नबी करीम की आल और औलाद है, ये हुजूर नबी करीम के नवासे हैं, हजरत अली के शहजादे हैं, हजरत हुसैन के बेटे हैं, हजरत फातिमा ज़हरा के खून है और उनके लख्ते जिगर हैं। इसलिए इन तमाम उलमा अहले सुन्नत की दुआ लेकर के सादत किराम की इज्जत बताना चाहता हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा के बारे में सवाल करने के लिए लोग पहुंचे, मदीने की औरत में बहस छिड़ गई कि फातिमा ज़हरा कितनी पाक और किस कदर पाकीज़ा है। तमाम औरतों ने ये मिलकर के फैसला किया चलो मदीने के दरबार में ये फैसला करा ले। नबी के दरबार में पहुंची औरत है तो नबी को दरबार में ना पाया तो उम्महातुल मोमिनीन से पूछ लिया, ए उम्महातुल मोमिनीन तुम बताओ, नबी की बीवियां तुम बताओ कि फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की इज्जत का आलम क्या है, उनकी पाकीज़गी का आलम क्या है। हज़रत खातून जन्नत की माँ और हम तमाम मोमिनों की माँ उम्महातुल मोमिनीन अर्ज करती है तुम जानना चाहते हो फातिमा ज़हरा कितनी पाकीज़ा है। फातिमा इतनी पाक है, इस कदर पाकीज़ा है, कुरान से ज्यादा पाक है फातिमा, काबे से ज्यादा पाक है फातिमा। मदीने की औरत ने पूछ लिया कैसे,
تو فاطمہ الزہرا کی ماؤں نے کھل کے کہہ دیا اور قرآن پڑھ کے سمجھا دیا اور بتا دیا ایسے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر پیغمبر سے ارشاد فرمایا وَإِذْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ میرے گھر کو صاف ستھرا کرے اور پاکیزہ بنا دے پاک کر دے اور لیکن جب یعنی خانہ کعبہ کی پاکیزگی کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم و اسماعیل تم میرے گھر کو پاک کرو اور جب نبی اور اولاد نبی کو پاک کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا میں اللہ چاہتا ہوں کہ نبی اور اولاد نبی کو پاک کر دیں اس لیے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں نبی پاک ہیں اولاد نبی پاک ہیں فاطمہ الزہرا پاک ہیں ان کی اولاد پاک ہے جہاں تک کہ آخری بیٹا امام مہدی علیہ السلام تک پاک ہے سارے بچے ایسے پاک ہیں کہ بریلی کے تاجدار پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ کر کے دنیا والوں کو جو خاموش کر دیے اللہ نے اور دنیا والوں کو یہ بتا گئے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اس لیے حضرات یہ اللہ کے نیک مقدس بندے ہیں ان کے دم قدم سے ہمارا گھر آنگن روشن ہے ان کے گھر دم قدم سے ہمارے گھر بار روشن ہے اس لیے حضرات ان اللہ کے نیک بندوں سے آپ اپنے آپ کو جوڑے رکھیے حضرات وقت کافی تیزی کے ساتھ گزر گیا ہے لیکن حضرات میں نے جو وعدہ کیا تھا اور معراج ربانی صاحب ہو یا سکندر ربانی صاحب اور دیگر علماء اہل سنت نے جو کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ منت پڑھ دیجیے گا منت پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہے لیکن کبیر داس جی کا ایک دوہا سن لیجیے اس لیے کہ عظمت والدین میں بیٹھے ہیں آج سے لگ بھگ 15 رمضان کی بات ہے کہ حضرت قاری نازا صاحب نے فون کیا تھا صاحب نے کہا تھا کہ حضرات آپ کو ایک پروگرام میں آنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات ہے آپ کی محبت کی بات ہے حاضری ضرور ہوگی حضرات 15 رمضان کی بات ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایک مرحومہ آمنہ خاتون ہے جن کا آج سے کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے 40ویں کی محفل ہے حضرات بتانا یہ چاہتا ہوں یہ ان کے بیٹوں کی محبت ہے کہ اپنے والدہ کے نام پر اپنے ماں کے نام پر محبتوں سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے اور درجنوں علماء کرام کو مدعو کیا ہے پیر طریقت کو بنایا ہے اور حضرات علماء اہل سنت کے ساتھ ساتھ آپ کو مدعو کیا ہے اس لیے حضرات آدمی آیا ہے تو صبر کرنا چاہیے پھر آدمی چلا جائے گا پھر اگر آپ کو عہدہ مل گیا ڈگری مل گئی آپ کو لوگ دو چار لوگ پوچھنے لگے پھر اہنکاری مت ہو جانا پھر غرور میں ڈوب نہ جانا پھر تکبر میں نہ ہونا جو ہو جانا اس لیے کہ حضرات بہت سارے لوگ پیسے کمانے کے بعد غریب کی عزت نہیں کرتے غریب کی ٹھوکر مارتے ہیں غریب کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں اس کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیتے ہیں لیکن حضرات کبیردار سے کہتے ہیں کہ انسان تم مغرور کیوں ہو گیا ہے تم متکبر کیوں ہو گیا ہے تو اہنکاری کیوں ہو گیا ہے تیرا غرور آسمان سے باتیں کیوں کر رہا ہے تیرا وجود تو یہ ہے کہ آئے ہیں تو جائیں گے راجا رنگ تو فتح آئے ہیں تو جائیں گے راجا رنگ تو فتح ایک سیاست میں چلے ایک بندھے زنجیر کبیرہ ایک بندھے ہم جس مٹی پر ابھی بیٹھے ہیں یہ اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی مٹی میں جا کر کے مل جانا ہے لیکن آج حضرات نازا صاحب سب سے زیادہ جھگڑا کوٹ کچہری میں سب سے زیادہ کیسز اسی مٹی کا ہے اسی زمین کا ہے میرے بھائی نے دو چار دھور زمین زیادہ قبضہ کر لیا ہے دو چار دھور زمین اویدھ ناجائز قبضہ کر لیا ہے لیکن مٹی کی پکار ہے اے میرے سینے پر چلنے والے انسان تو غرور کر کے نہ چل سینے کو تان کر کے نہ چل اسی مٹی میں تجھے آیا ہے اور پھر اسی مٹی میں دفن ہو جانا ہے اس لیے مٹی کی پکار کیا ہے مٹی کیا کہہ رہی ہے ذرا سن لیجئے ماٹی کہے کمہار سے ماٹی کہے کمہار سے تو کرو دینا ایک دن ایسا آئے گا میں روندو گے تیرے کبیرہ میں روندو گی تیرے اس لیے حضرات
आदमी को मर जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत से हम किनार हो जाना है। इसलिए हजरात जरा सुन लीजिए कि आपके सामने पेड़ पौधे हैं, दरख्त है, ये विशाल वृक्ष है, इसके पेड़ पत्ते आपसे कुछ बातें कर रहे हैं और पेड़ पत्ते आपसे कुछ कलाम करके दुनिया वालों को बता दे रहे हैं कि ए लोगों, इस दुनिया में इस धरती पे कैसे जीना है। इसलिए कि इस धरती पर बसने वाले जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले जितने इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। इसलिए विशाल वृक्ष का पैगाम सुन लीजिए। आखिरी गुफ्तगू है, मैं इशारा पूरी तरह से समझ रहा हूँ, इसलिए कि 2011 से प्रोग्राम करता हूँ। जरा सुन लीजिए हज़ार दरख्त का पैगाम क्या है। इसके हरे भरे पत्ते आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। वृक्ष बोला पात से, आज से लगभग 550 साल पहले एक सूफी समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो कहे हमारे हैं, सबको आपस में है भाई भाई, यानी वो कबीरदास जी हैं जिन्होंने मानवता का प्रचार किया, वो कबीरदास जी कहते हैं वृक्ष बोला पात से, सुन पते मेरी बात, इसी जगाया रीत है, एक आवत एक जाति कबीरा, एक आवत एक जात। इसलिए हजरात, इंसान आया है, भूखों को खाना खिलाना मजहब है, गिरतों को उठाना इस्लाम है, रोकों को हंसाना इस्लाम है, बिलट्टों को दिलासा देना इस्लाम है, और बिलट्टों को बेसहारों को सहारा देना इस्लाम है, गमज़दों को मुर्ज़े जाफिज़ा सुनाना इस्लाम है। और यही काम रात के सन्नाटे में, दिन के उजाले में मेरे पैगंबर ने किया था। गिरतों को उठाया था, रोकों को हंसाया था, बिलट्टों को दिलासा दिया था, गमज़दों को मुर्ज़े जाफिज़ा सुनाया था। और बरेली के ताजदार ने कहा था, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसूर का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी। इसलिए हजरात, मैं दुआ कर देता हूँ कि अल्लाह दौलत दे तो भूखों को खाना खिलाइए, नंगों को कपड़ा पहनाइए, उलमा की सोहबत में बैठिए, नेक काम कीजिए, बुराई मत कीजिए। इसलिए कि हजरात, मसीह मिल्लत के दामन से, इनकी औलाद से आप वाबस्ता हो चुके हैं, तो अपने आप को नेक बना लीजिए। जब आपका जनाजा किसी 4 लोगों के कंधे पर उठे तो दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और हज़रात, जब आपको कब्र की तन्हाई में लिटाया जाए तो सारे लोग कफन हटा करके जब आपका चेहरा देखे तो लोग कहे लहद में इश्क से शहे का दाम लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले, ताकि इश्क नबी ले चलो, कब्र में है चराग लहद रोशनी के लिए। साए इतना दीजिए जाम कुतुम बसमा, साए इतना दीजिए जाम कुतुम बसमा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। हज़रात, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त बच गया है, इस 2 मिनट में थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लीजिए। हज़रात, इसलिए मैं कहना ये चाहूँगा कि हज़रात, आदमी आया है नेक अमल से दुनिया को सजाना है, नेक अमल से आखिरत को संवारना है। इसलिए कि हज़रात, जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा खुदा भी उसमें जहन्नम हराम कर देगा। तीसरा सवाल मुनकर नकीर कब्र में हमसे क्या पूछे, जब उठ के सुन्नी आका को सलाम कर देगा। इसलिए हज़रात, आदमी तैयारी करे, आखिरत की तैयारी करे, मौत की तैयारी करे, कब्र में सोने की तैयारी करे। इसलिए कि हज़रात, बड़े दिन तक कब्र में सोना है, बड़े दिन तक कब्र की तन्हाई में लेके रहना है, तो कब्र हमारी रोशनी बन जाए और बुक़्क़े नूर बन जाए, कब्र में रोशनी का इंतजाम हो जाए। इसलिए ऐसी कब्र की तैयारी करने के लिए आपको नेक अमाल अंजाम देना होगा। इसलिए कुरान ने कहा, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। मैं इस पूरी आयत को तर्जुमा करना चाहूँ, बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन हज़रात इशारा हो रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू को यही समेट रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हमारी लग़्ज़िशों को,
ہماری دنیاوی زندگی میں تمام تر غلطیوں کو جتنی غلطیاں ہوئی ہیں مولا تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، خطاؤں لفظوں کو معاف فرمائے، حرام کاری سے بچائے، حرام لٹنے سے بچائے اور حرام زندگی سے بچائے۔ مولا تعالیٰ ہماری زندگی میں بندگی ہو، بندگی میں زندگی ہو اور ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ اس لیے حضرات میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو تابناک بنائیں تو اس طور پر بنائیں ان اللہ کے نیک بزرگوں کے دم قدم سے ہماری زندگی بھی روشن ہو، آخرت بھی سنور جائے۔ یہ کوشش کیجئے۔ اس لیے کلمہ شریف پڑھ لیجئے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ داخل جنت ہو گیا۔ اور بڑے بڑے ویدیانوں نے، بڑے بڑے آچاریوں نے، بڑے بڑے پنڈتوں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ پرم پدم جنم بغیر پاک انتے جپے نابے محمد آسمان لما الا لما الا لما مدرا ونا بیانی بھتے الا لما ونا مدرا سوسکام مہا اتار میں ہوتا ہے مہا سمندرا اللہ جسٹ اللہ جسٹ پرم پدم برہمان اللہ مہا اللہ مہا اللہ رسول محمد رکابرس اللہ مہا الپنشد منتر نمبر 1 2 3 جس کا ترجمہ یہ ہو گیا ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، عظمت والدین کانفرنس زندہ باد اور مرحومین کے نام پر رسالے ثواب کرنے والے زندہ باد۔ خدا آباد رکھے اس پورے چمن کو، فقیر دعا دے کر چلا اپنے وطن کو۔ السلام علیکم۔